Hello guys, welcome back to literature classes. This is Abhilasha Yadav. Guys, today I am going to discuss the very important topic for all the aspirants, whether they are preparing for CTET, TET, TGT or PGT or other exams of English. This video would be helpful for all the aspirants. In this video, I'll discuss the very important thing, that is relative pronoun. As we have read personal pronoun, demonstrative pronoun, reciprocal pronoun, descriptive pronoun and others. So in this series, today we shall learn relative pronouns. What is relative pronouns? The pronouns which shows the relation with the noun. Guys, in this video we will learn the use of who, which, whose, that, but, etc. How to use these relative pronouns in the sentences. We'll learn all these things with the example. So guys, without wasting much time on this, let's begin the topic. So guys, what is relative pronoun? I told you that relative pronouns are the pronouns which tells the relation with the noun or the pronoun which is used in the sentence before the relative pronouns. These words are called relative pronouns, or these things are called relative pronouns. What are the relative pronouns? So who, which, that, but, what, whose, etc. Okay, basically these are called relative pronouns: who, which, that, but, what, whose and as. One pronoun is also there, is as. Okay, these are relative pronouns. How can we use these relative pronouns in the sentences? These relative pronouns are also called conjunction. Means these relative pronouns work as conjunctions in the sentences. How they work? How can we use these relative pronouns in the sentences? See the example. See guys, I met Mr. Agrawal who was returning from his office. I met Mr. Agrawal. I met a person, that is Mr. Agrawal, who was returning from his office. Here we have used a pronoun, a relative pronoun, that is who. हिंदी में कहेंगे I met Mr. Agrawal. मैं Mr. Agrawal से मिला. Who was returning, जो कि वापस आ रहे थे कहाँ से? अपने ऑफिस से. मैं मिस्टर अग्रवाल से मिला, जो. ठीक है, तो यहाँ पे हु क्या कर रहा है? रिलेशन बता रहा है. किससे? मिस्टर अग्रवाल से. आई मेट मिस्टर अग्रवाल. मैं मिस्टर अग्रवाल से मिला, जो. वॉज रिटर्निंग, जो कहाँ से रिटर्न हो रहे थे? ऑफिस से. तो आई का रिलेशन किससे है? मिस्टर अग्रवाल से. और आई जो है, हु जो है, वो किसको डिफाइन कर रहा है? मिस्टर अग्रवाल को डिफाइन कर रहा है. गॉट दिस पॉइंट? सी द नेक्स्ट सेंटेंस. रेखा हैज अ ड्रेस विच शी बॉट एट अ शॉप. रेखा हैज अ ड्रेस. रेखा के पास एक ड्रेस है. विच शी बॉट एट अ शॉप, जिसको उसने एक शॉप पे खरीदा. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अ थिंग, not about a person. So when we talk about a thing, that time we use which, and when we talk about the person, that time we use who. See the difference? Here we are talking about a person, here we are talking about the thing. Rekha has a dress. रेखा के पास एक ड्रेस है. Dress is a cloth, is a type of clothes. That means a thing. This is a thing. That's why we are using a conjunction, a relative pronoun, that is which. Got this point? So Rekha has a dress which she bought at a shop. Next sentence. The pen that my brother gave writes well.
द पेन दैट माई ब्रदर गेव, पेन जो मेरे भाई ने दिया है, गेव राइट, द पेन दैट माई ब्रदर गेव राइट्स वेल, पेन जो कि मेरे भाई ने दिया है, गेव राइट्स वेल, वो क्या करता है, अच्छी लिखाई करता है। हियर ऑल्सो वी आर टॉकिंग अबाउट अ थिंग, द पेन दैट माई ब्रदर गेव, द पेन इज अ थिंग that my brother gave writes well. Here we are using that. That is a relative pronoun which is used for a pen. Means that can be used with thing also and with the person also. Guys, see the next sentence. You have seen the incident but it is not true. You have seen the incident. तुमने घटना को देखा बट इट इज़ नॉट ट्रू, लेकिन ये सच नहीं है। हियर बट इज ऑल्सो अ कंजंक्शन एंड बट इज ऑल्सो अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज्ड एज रिलेटिव प्रोनाउन हियर इन दिस सेंटेंस फॉर यू हैव सीन द इंसिडेंट। तुमने एक इंसिडेंट देखा, तुमने इंसिडेंट को देखा, तुमने घटना को देखा, बट इट इज़ नॉट ट्रू, लेकिन ये सच नहीं है। फॉर अ थिंग बट इज यूज्ड एज रिलेटिव प्रोनाउन फॉर अ थिंग। नेक्स्ट, यू कैन ईट वॉट यू लाइक, तुम खा सकते हो जो तुम्हें पसंद हो। वॉट यू लाइक, जो, वॉट मीन्स हियर जो। You can eat which you like, you can write here you can eat which you can like, which you like, sorry, okay। इस तरह से भी हम इस सेंटेंस को बना सकते हैं। तो कैसे इन सेंटेंसेस को फ्रेम करना है, मीन्स कौन सा कंजंक्शन कहाँ पे यूज करना है, कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन कहाँ पे यूज करना है, चलिए देखते हैं। See guys, the sentence, the boy who came here is a player, the boy who came here is a player. What is the thing that is mentioned in the sentence? Guys, we can use relative pronoun as the subject of the subordinate clause. Subordinate clause here is came here is a player. This is the subordinate clause of the sentence. Okay? तो इसमें क्या है, जो सबॉर्डिनेट क्लॉज है उसके सब्जेक्ट के रूप में हु का यूज हुआ है। मीनिंग इज दैट रिलेटिव प्रोनाउंस आर ऑल्सो यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ सबॉर्डिनेट क्लॉज। बेसिकली जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं वो सबॉर्डिनेट क्लॉज, जो सेंटेंसेस में दो सेंटेंस होते हैं, जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं इसमें क्या होते हैं, दो सेंटेंस होते हैं बेसिकली, तभी रिलेटिव प्रोनाउन का यूज होता है। रिलेटिव प्रोनाउन मीन्स the pronouns which shows the relation with the noun or pronoun. So when we see two sentences, at that time only we can tell the relation. So that's why basically relative pronouns are used with the two sentences as the connecting word. Okay, so the boy who came here is a player. Here who is the subject? Who subject? Subordinate clause, the subject of subordinate clause. See, this is the man who has stolen my watch. This is the man who has stolen my watch. तो this is the man, ये वो आदमी है who, जिसने has stolen my watch, जिसने मेरी वॉच को चुराया, या जो मेरी वॉच को चुराया जिसने था। ठीक है, तो क्या है इसमें, पहली बात कि जो हु है वो सबॉर्डिनेट क्लॉज के सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। नेक्स्ट थिंग इज दैट दिस इज द मैन, यहाँ पे क्या है, ये मैन का क्या बता रहा है, डिस्क्रिप्शन दे रहा है, मैन के बारे में क्या कर रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो वी हैव सीन इन द सेंटेंस, वी हैव सीन टू थिंग्स। फर्स्ट थिंग, द relative pronoun is working here as the subject of the subordinate clause, and the next thing is that this who is giving the additional information about the subject. Okay, next
See guys, there are some sentences or you can say there are some uses of relative pronoun in which we see एंटीसीडेंट के बारे में क्या करते हैं, वो एंटीसीडेंट को रेस्ट्रिक्ट नहीं करते बल्कि क्या करते हैं उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं। कैसे? आई हैव सीन माई फ्रेंड हु रिकॉग्नाइज्ड मी एट वंस। आई हैव सीन माई फ्रेंड हु, हियर हु इज टेलिंग अबाउट माई फ्रेंड दैट रिकॉग्नाइज्ड मी एट वंस। तो क्या हो रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जा रही है सेंटेंस के द्वारा। ठीक है गाइस, बेसिकली जो रिलेटिव प्रोनाउंस हैं उसमें जो विच होता है, विच बेसिकली किसके यूज़ किया जाता है, थिंग के लिए। देखिए, ही हैज़ बॉट अ कार विच इज़ वाइट। ही हैज़ बॉट अ कार, उसने एक कार खरीदी जो कि कैसी है, वाइट है, सफ़ेद है। तो यहाँ पे वाइट कलर कार की बात हो रही है, दैट्स वाई विच। ओके गाइस, जो हमारे वर्ड है हु, हुम और हुज, कौन से वर्ड, हु, हुज और हुम, these words are used with male, female means masculine, feminine, masculine and feminine. These words are used with masculine and feminine and with the singular और plural, मतलब चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो। हु, हुज और हुम का यूज़ मैस्कुलिन सेंटेंसेस के लिए भी, मैस्कुलिन डिफाइनिंग वर्ड्स के लिए भी और फेमिनिन डिफाइनिंग वर्ड्स के लिए भी हमें क्या करना है, विथ सिंगुलर और प्लूरल हमें यही रिलेटिव प्रोनाउंस का यूज़ करना है। कौन कौन से, हु, हुज और हुम का। ठीक है, लर्न इट विद एग्जाम्पल। दिस इज द गर्ल हुम ऑल प्रेज। दिस इज द गर्ल हुम ऑल प्रेज। यह लड़की है जिसकी सभी प्रेज करते, प्रशंसा करते हैं या तारीफ करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, दिस इज द गर्ल हुम, फेमिनिन है और सिंगुलर है। तो हमें क्या करना है, अगर यहाँ पे प्लूरल भी होती तो भी हम क्या लगा लेते, हुम लगा सकते। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, टेक एनीथिंग दैट यू लाइक। टेक एनीथिंग, यहाँ पे दैट का यूज़ कैसे हो रहा है, थिंग के लिए हो रहा है। टेक एनीथिंग, कुछ भी ले लो जो तुम्हें पसंद हो। अब दैट का यूज़ यहाँ पे, दैट का यूज़ हम पर्सन के लिए भी कर सकते हैं, दैट का यूज़ थिंग के लिए भी किया जा सकता है। दैट कैन बी यूज्ड विद अ थिंग, दैट कैन बी यूज्ड विद अ पर्सन, सेम एज टेक एनीथिंग दैट यू लाइक। See the next sentence, the girl whose brother studies in my class is my classmate. Okay, the girl whose brother, ये लड़की है जिसका भाई स्टडीज मतलब पढ़ता है, इन माई क्लास इज माई क्लासमेट, वो मेरा क्या है, क्लासमेट है। यहाँ पे क्या यूज हुआ है, हुज, द गर्ल हुज। तो हुज क्या है, यहाँ पे पूरे सेंटेंस का डिफाइनिंग वर्ड है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। नेक्स्ट, दिस इज द बॉय हुज ब्रदर लिव्स इन पटना। यहाँ पे हम दैट का यूज नहीं करेंगे, दिस इज द बॉय दैट ब्रदर, नो, हुज, क्योंकि क्या हो रहा है, किसका के सेंस में आ रहा है या जिसका के सेंस में आ रहा है। दिस इज द बॉय हुज ब्रदर लिव्स इन पटना। इसी को हम ऐसे लिख दें, हुज ब्रदर लिव इन पटना, हुज ब्रदर लिव इन पटना। तो क्या हो जाएगा, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ओके, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, हुज का यूज रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज हो रहा है, इसलिए ये क्या है, बीच में आया है। नेक्स्ट गाइस, वी कैन यूज हुज। हुज का प्रयोग हम लोग क्या कर सकते हैं, थिंग के लिए भी कर सकते हैं और पर्सन के लिए भी कर सकते हैं या एनिमल्स के लिए भी कर सकते हैं। दिस इज द डॉग हुज नेम इज टॉमी। हियर डॉग इज अ एनिमल, वी कैन यूज अ वर्ड relative pronoun whose with the dog also, means animals also. This is the dog whose name is Tommy. ये वो डॉग है जिसका नाम क्या है, टॉमी है। नेक्स्ट, all the money that I gave her has spent. See guys, when all is used with a thing, that time we have to use relative pronoun that. Relative pronoun that for the thing.
all the money that I gave her has spent. यहाँ पे who, whose या which का प्रयोग नहीं होगा, किसका होगा? that का यूज होगा, क्योंकि all किसके लिए यूज हो रहा है? thing के लिए यूज हो रहा है. all the money that I gave her has spent. Guys, we have some words like everything, nothing, the only, any, all, everyone, not, none, no, nobody, much, little, same. With these words we have to use a conjunction, or you can say a relative pronoun, that is that. Which relative pronoun? that. एक relative pronoun का यूज होगा, किसका होगा? that का यूज होगा. क्यों that का यूज होगा? क्योंकि उस सेंटेंस में क्या होगा? एवरीथिंग, नथिंग, द ओनली, ऑल, एवरीवन, इन सारे वर्ड्स का यूज होगा. लाइक माई फादर हैज़ गिवन मी एवरीथिंग दैट ही हैड. मेरे फादर ने वो सब दिया जो उनके पास था. ठीक है, तो यहाँ पे एवरीथिंग वर्ड का यूज हुआ है, इसलिए हम किसका यूज करेंगे? दैट का यूज करेंगे. अगर किसी सेंटेंस में द ओनली या ओनली वर्ड का यूज है, जैसे दिस इज द ओनली पेन दैट आई बॉट यस्टरडे. दिस इज द ओनली पेन that I bought yesterday. This is the only pen that I bought yesterday. तो यहाँ पे किसका यूज हुआ है? that का यूज हुआ. Guys, I told you कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जैसे everything, nothing, everyone, the only, same, little, few. इन वर्ड्स के साथ में किसका यूज होगा? दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज होगा. ठीक है. नेक्स्ट, दिस इज नॉट द सेम एज दैट. दिस इज नॉट द सेम, ये वैसा नहीं है जैसा वो था. ठीक है, ये वैसा नहीं है. तो यहाँ पे किसका यूज हो रहा है? द सेम. द सेम इज अ रिलेटिव प्रोनाउन. देखिए फ्रेंड्स, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं या सेंटेंसेस होते हैं जो कि इट से स्टार्ट होते हैं. तो वहाँ पे जब इट से स्टार्ट होंगे और प्लस उसमें प्रॉपर नाउन या बी लगा होगा, तो उसको भी हम वहाँ पे हम किस रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे? विच रिलेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड विद अ सेंटेंस दैट बिगिंस विद इट. तो उसमें किसका यूज होगा? हु एंड दैट. इन दैट केस वी हैव टू यूज अ रिलेटिव प्रोनाउन हु और दैट. सी द एग्जाम्पल, इट इज मुकेश who teaches my children. This sentence starts with it and we have used a relative pronoun that is who. It is milk that I have ordered. It is milk. Here we are using that. That is a relative pronoun. It is milk that I have ordered. Next, this is the student to whom I have taught English. This is the student, means when our sentence have a preposition, we can use with that preposition a relative pronoun that is whom. Okay, so this is the student to whom I have taught English. In this way we can make the sentence with the preposition and relative pronoun together. Okay. In the same case, if we are talking about a thing like this is the hotel, this is the hotel. Here we give a preposition in. I have stayed. या I stayed. Okay, तो यहाँ पे कौन सा preposition यूज होगा? Which. क्यों विच का यूज हो रहा है? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ थिंग, अ प्लेस. दिस इज द होटल इन विच आई स्टेड. ओके, सो गाइज, दीज आर ऑल द यूजेस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस. आई होप यू वुड लाइक दिस वीडियो. Still you have any queries, any doubt in your mind, mention it in the comment section below. I'll try my best to remove your all problems. That's it for today. I'll meet you very soon with a new video. Till then, keep studying and have fun with literature. Thank you.